Bismillahirrahmanirrahim. Today I will be discussing another important topic in continuation of my previous talk on the membrane potential, the action potential and electrical and concentration differences across the cell membranes. We will be discussing today diffusion through protein pores and channels across the cell membrane and their gating phenomena. One thing must be clear that there are different types of proteins in the cell membrane with diversity of functions. Some of them are integral proteins while others are transport pathways. They have analyzed them and found that these are basically tubular pathways which traverse the cell membrane from outer side to the inner side, that is from the extracellular fluid to the inner side or intercellular fluid. It is very important to know these tubular channels because they are responsible for the passage or diffusion of the substances from outer side of the cell to the inner side of the cell. They are basically pores through which substances can move or dish from outside of the cell membrane to the inside. And potassium channel is one example of this. As I told you, I will be confining my discussion to the textbook of physiology by Guyton 13th edition. And you can see, as I have told you, this is an example of potassium channel. You can see that this is the diagram of potassium channel in the textbook of Guyton. The structure of the potassium channel is very much clear here, and because it has a three-dimensional reconstruction which shows that it is composed of 4 subunits, 2 of which are only shown, and each with 2 transmembrane helices. There is a narrow selectivity filter which is formed from the loop pores and carbonyl oxygen in the walls of the selective filter. The selectivity filter is very important, determining the permeability of the potassium ion and excludes other ions. So this is the structure of the potassium ion, a potassium channel which you should see, and you should remember that it is important to know that these pores or these channels are very important for the permeability and diffusion of sodium and potassium, calcium and other ions across the cell membrane from extracellular to the intercellular space. Again, coming to the previous discussion, we can see that the diameter of these tubular channels or pores and its electrical charge provides selectivity which allows only certain molecule to pass through, that is they are selectively permeable. अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं उनमें कुछ इंटेग्रल प्रोटीन्स हैं, कुछ चैनल्स हैं जिनके अक्रॉस आयनिक एलिमेंट्स जो हैं आयन, सोडियम, पोटेशियम, दे मूव अक्रॉस दी मेम्ब्रेन बाय सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड अदर एनर्जी टेकिंग मैकेनिज्म्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें समझने की वो ये है कि जो डायमीटर है इन ट्यूबुलर चैनल और पोर्स का, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं. ये इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो उसकी सेलेक्टिविटी को डिटरमिन करता है और इसकी वजह से सिर्फ वही आयन इसमें से पास कर सकते हैं जिनको ये परमिएबल होता है. These channels are permeable to specific ions. For example, as I have shown you the picture of potassium channel, it is permeable to potassium only. Once the potassium enters into the selectivity filter, it can cross the cell membrane to enter into intercellular space. Similarly, other ions are excluded. Sodium cannot pass, but potassium can pass. Another example of selective permeability is aqua proteins. Aqua कहते हैं पानी को, और water. These are water channels which permit rapid passage of water but exclude other molecules. Again, these channels are selectively permeable. The diffusion across the cell membrane is very important. We can see that in this figure, they have shown that this is the cell membrane, lipid bilayer, and this is the passage of the fluid, ions and electrolytes across the membrane by simple diffusion. This is using a carrier protein to pass across the membrane, which is known as facilitated diffusion, and these are energy based mechanisms where ADP and ATP is used. This is very important because it is responsible for the maintenance of the passage of the ions and different types of molecules across the cell membrane. There is a selectivity filter shown in potassium channel figure 4.4 which I have shown you, which selectively allows only potassium to pass through the cell membrane while excluding other ions such as sodium. There are different selectivity filters for different ion channels including sodium, potassium, calcium, etc.
सोडियम के लिए अलग सेलेक्टिविटी फ़िल्टर होगा, पोटेशियम के लिए अलग होगा, कैल्शियम के लिए अलग होगा। एक वक्त में सिर्फ एक आयन जो है वो एक तरफ आउटर साइड से इनर साइड या इनर से आउटर साइड पे डिफ्यूज़ करेगा एट अ टाइम। सेलेक्टिविटी फ़िल्टर जो सिर्फ परमिएबिलिटी को डिटरमिन करता है, दैट इज इट इज़ परमिएबल फॉर ओनली दैट आयन एंड नॉट फॉर द अदर। Similarly, another example of selective permeability is the sodium channel. You can see that they have shown the sodium channel in figure 4-5 of this chapter number 4 of Arthur C. Guyton, and you can see easily that there is an outer side of the cell membrane and inner side of the cell membrane, and this is the sodium channel. One thing which is important to know that this sodium channel is gated, that is, it appears that as if there are gates. Actually, it is the folding of the protein of the channel which can move inwards and outwards and can open or close this gate. That is why it is known as gate. Sodium channel is only 0.3 to 0.5 nanometers in diameter and is lined on inner surface with amino acids which are strongly negatively charged. ये आपको नेगेटिव चार्ज नज़र आ रहा है, अमाइनो एसिड हैं जो नेगेटिवली चार्ज हैं। The function of these negative charges is to pull small dehydrated sodium ions into these channels, thus pulling sodium ions away from their hydrating water molecules. सोडियम जो है वाटर के साथ अटैच है, जब इस के अंदर एंटर होगा इस गेट के अंदर, it will detach from the water and it will be dehydrated and will be allowed to pass across the membrane from outer side to the inner side. Sodium channel is highly selective for sodium ions, but this channel is gated. हाउ दीज चैनल्स आर गेटेड, वाई दे आर गेटेड। गेटिंग का मकसद ये होता है कि सिर्फ वही मॉलिक्यूल या वही आयन क्रॉस करे जिसके लिए मेम्ब्रेन या चैनल परमिएबल है, उसके अलावा दूसरे आयन क्रॉस ना कर सके। प्रोटीन चैनल्स दे आर प्रोटेक्टेड बेसिकली बाय गेटिंग टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ अदर आयन इनटू द सेल। जैसे मैंने आपको बताया, दूसरे आयन्स जो है, अगर सोडियम क्रॉस कर रहा है तो पोटेशियम की एंट्री, पोटेशियम क्रॉस कर रहा है तो सोडियम की एंट्री जो है वो एट सेम टाइम बंद होगी, उससे क्रॉस नहीं कर सकेगा। इसका मकसद ये है कि सो दैट इट कैन बी कंट्रोल्ड, द आयन परमिबिलिटी कैन बी कंट्रोल्ड। ओनली दोज आयन्स आर अलाउड टू क्रॉस which for which the channel is permeable. There are basically two types of gating. दो तरह के गेट होते हैं। एक है वोल्टेज गेटिंग। वोल्टेज गेटिंग जो है उसको समझने के लिए ये देखना ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो किसी भी प्रोटीन, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन मौजूद हैं, इनकी जो स्ट्रक्चर है, इनका स्ट्रक्चर आप देखें, एक ये इसका यूनिट है और एक ये यूनिट है। देयर आर टू यूनिट्स and they are negatively charged on the inner side. They are amino acids lining it which are strongly negatively charged. Whenever voltage gating is the phenomena, the molecular conformation of the gate or its chemical bonds respond to electrical potential across the cell membrane. For example, sodium ion is positively charged, but these gates of the channels are lined by amino acids which are strongly negative charged. Outer side से sodium ion आ रहा है positive charge, अंदर नेगेटिव चार्ज है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज। यू कैन सी टॉप पैनल को देखिए, इसमें आप देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज है ऑन इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ये आउटसाइड सोडियम गेट्स को टाइटली क्लोज रखेगा, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कैन नॉट एंटर। इसी तरह से जब अंदर की तरफ मेम्ब्रेन के आप देखेंगे कि इसकी नेगेटिव चार्ज जो है वो लूज हो गया है, दीस गेट पॉजिटिव होनी शुरू हो गई है, दीस गेट्स वुड ओपन सडनली एंड अलाउड sodium to pass inward through the sodium pores. This process is the basic mechanism for action potential in nerves that are responsible for nerve signals. तो इसको मैं रिपीट करता हूँ कि ये गेटेड सोडियम चैनल है। सोडियम चैनल के दो सब यूनिट्स हैं। इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि ये स्ट्रॉन्गली नेगेटिवली चार्ज है, स्ट्रॉन्गली नेगेटिव चार्ज है। और जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई होगी, कोई सोडियम आयन आएगा पॉजिटिव, या कोई डीपोलराइजेशन एक्टिविटी आएगी, या कोई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जैसा हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था आएगी, तो आप उसमें देखेंगे इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो आउटसाइड सोडियम गेट्स को टाइटली क्लोज कर देगा। इसी तरह जब इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन पे नेगेटिविटी जो है वो कम होगी और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो गेट्स ओपन होंगे और सोडियम ऑटोमेटिकली अंदर एंटर हो जाएगा। ये वो प्रोसेस है जिसको हम सोडियम इन्फ्लक्स बोलते हैं, और ये बुनियाद है उस चीज़ की जिसको हम एक्शन पोटेंशियल या नर्व सिग्नल बोलते हैं। दूसरे पैनल को देखिए, इसके अंदर इसने बताया कि पोटेशियम गेट जो है वो इंट्रासेलुलर साइड पे हैं। सोडियम गेट इज प्रेजेंट ऑन दी एक्स्ट्रासेलुलर साइड,
इट ट्रेवर्सेस द मेम्ब्रेन, एक इसकी एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है, एक इसकी ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है और एक इंट्रासेलुलर डोमेन है। जो पोटेशियम चैनल है उसका जो गेट है इंट्रासेलुलर डोमेन में है और ये उस वक्त ओपन होते हैं जब सेल की अंदर की तरफ इंट्रासेलुलर जो मिल्यू है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। जब ये गेट ओपन होते हैं तो इस बेसिकली पोटेशियम इफ्लक्स और आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पोटेशियम स्टार्ट्स और इससे ये एक्शन पोटेंशियल जो है टर्मिनेट हो जाती है। तो ये बात ज़हन में रहे कि जब वोल्टेज गेटिंग होगी, कोई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आएगी, सोडियम गेट खुलेगा, सोडियम एंटर हो जाएगा और जब अंदर इंटरसेलुलर पोटेशियम जो है, पोटेशियम चैनल ओपन होंगे तो उसकी वजह से अंदर से सेल मेम्ब्रेन से पोटेशियम में फ्लक्स होगा, सोडियम की एंट्री से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और पोटेशियम में फ्लक्स से एक्शन पोटेंशियल टर्मिनेट हो जाएगा। दूसरी तरह की गेटिंग जो है उसको कहते हैं लाइगेंड और केमिकल गेटिंग। सब कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन चैनल्स हैं जो ख़ास केमिकल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। एक लाइगेंड है, एक मॉलिक्यूल है और उसको ये प्रोटीन चैनल जो है रिस्पॉन्ड करता है, जिसकी वजह से ऐसी कन्फर्मेशनल चेंजेस आती हैं, मॉलिक्यूल के अंदर ऐसी स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं कि इट रिस्पॉन्ड इन सच अ वे दैट द गेट इज ओपन और द पोर मॉलिक्यूल ओपन और क्लोजेज द गेट। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है वो है एसिटाइल कोलिन चैनल। एसिटाइल कोलिन आप जानते हैं, एसिटाइल कोलिन रिलीज होती है, बाइंड करती है एसिटाइल कोलिन इस गेट को, इस गेट के साथ एसिटाइल कोलिन चैनल के साथ, और ये ओपन होता है। और एसिटाइल कोलिन जो है गेट के साथ जब बाइंड करती है, प्रोवाइड नेगेटिवली चार्ज पोर अबाउट 0.65 नैनोमीटर इन डायमीटर विच अलाउज अनचार्ज मॉलिक्यूल्स और पॉजिटिव आयन स्मॉलर देन दिस डायमीटर टू पास थ्रू। इससे छोटे जो है वो क्रॉस करते हैं। दिस गेट अलाउज द एसिटाइल कोलिन टू क्रॉस the channel and elicit the electrical signals. This gate is exceedingly important for transmission of nerve signal from one nerve cell to other and from nerve cell to muscle cell to cause muscle contraction. ये मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ कि यह सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स हैं, डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स हैं। ये प्रोटीन इंटेग्रल हैं, इनको चैनल्स बोलते हैं। दो तरह के चैनल होते हैं, सोडियम चैनल हैं, पोटेशियम चैनल हैं। पोटेशियम चैनल जो है ये ट्यूबुलर चैनल्स हैं। ये इनके अक्रॉस सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एनर्जी डिफ्यूजन के जरिए मुख्तलिफ एलिमेंट्स और आयन जो हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम आउटर साइड टू द इनर साइड ऑफ द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। दूसरा हमने ये देखा कि सोडियम चैनल है और पोटेशियम चैनल है। पोटेशियम चैनल भी सेलेक्टिवली परमिएबल है और सोडियम चैनल भी सेलेक्टिवली परमिएबल है। इनकी वोल्टेज गेटिंग है, अगर कोई एक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा तो आप देखेंगे सोडियम चैनल की जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है, सेल के बाहर वो गेट है, वो ओपन होगा और सोडियम इसमें से इन्फ्लक्स करेगा। जब इनर साइड पर नेगेटिविटी कम होगी तो ये गेट ओपन होगा और सोडियम को अंदर आने की इजाज़त देगा। इसी तरह जब अंदर नेगेटिविटी कम होगी तो पोटेशियम चैनल ओपन करेगा और फ्लक्स होगा, सोडियम की एंट्री से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, पोटेशियम के फ्लक्स से एक्शन पोटेंशियल टर्मिनेट हो जाएगा। इसी तरह केमिकल गेटिंग के अंदर बेस्ट एग्जांपल एसिटाइल कोलिन की है। ये केमिकल है जो एसिटाइल कोलिन चैनल से बाइंड करती है, एक्शन पोटेंशियल इसकी वजह से जनरेट होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस एसिटाइल कोलिन गेट और चैनल इज इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल फ्रॉम वन नर्व टू सेल टू अदर और फ्रॉम नर्व टू मसल विच कैन कॉज मसल कंट्रैक्शन कपलिंग। इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो आप ज़रूर पूछें, कोई चीज़ अनक्लियर हो ज़रूर पूछें। बस दो बातें याद रखनी हैं कि दे आर सेलेक्टिवली permeable due to presence of selectivity filters in them. Okay, thank you very much.